Welcome everyone. Today is the second day of our 2 days national workshop on research methodology and ethics. I am Rachna Bajaj from Department of Civil Engineering, Rabindranath Tagore University. It's my proud privilege to welcome you all. And to continue this workshop, I would like to invite our convener, Mr. Kapil Soni sir, Head of the Department, Civil Engineering, to deliver the opening. Okay, thank you, Rachna madam. Thank you very much for inviting me. Hello and good afternoon, everyone. I welcome you all in the second technical session of workshop Research Methodology and Ethics, organized by Department of Civil Engineering, Rabindranath Tagore University. With warm greetings, I heartily welcome our today's resource person, Dr. Rashmi Nigam madam. I am very thankful to her for accepting our invitation and spending time for us. Thank you very much, madam, for coming and joining. I also welcome our yesterday's resource person, Dr. A.K. Srivastava, sir. Thanks for joining today's session, sir. So, dear all, once again, I heartily welcome all of you in this very important session of workshop Research Methodology and Ethics. A big thanks to each and everyone present here for joining this program. I am sure that today's session will be fruitful to all the students, research scholars, as well as faculty members of various departments. Now it is over to you, Rachna madam, for further proceeding. Thank you very much. Without further ado, we will turn the time over to our today's presenter, Dr. Rashmi Nigam ma'am. I would like to have a brief introduction about her. She is the professor, Department of Mathematics, RGPD, Bhopal. She completed her MSc and BSc from Barkatullah University, Bhopal. She has Masters in Social Work from Maharishi Mahesh Yogi University, Jabalpur. Her total experience is about 21 years. She achieved lifetime membership from ISTE. She delivered expert lectures at EPCO Bhopal. She published more than 25 international journals and attended various international and non-national conferences throughout the India. She also has a chapter in the book New Technologies for Rural Development Having Potential of Commercialization. Now, I heartily request Dr. Rashmi Nigam ma'am to proceed further. Over to you, ma'am. Thank you, Rachna ma'am, to give the opportunities to views my in related to the research methodology topics. Thank you so much. First, I want to thank you for the Kapil sir to invite me to this 2 days workshop in research methodology. And after listening yesterday, the AP Srivastava sir, thank you very much, sir, to give the opportunity to listening to you. After that, मुझे लगता है कि मैं रिसर्च मैथोलॉजी को शायद रिपीट ना करूं, सो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि कुछ नई चीज़ें आपको बता पाऊं, क्योंकि सर ने काफ़ी कुछ अच्छे उसमें इट्स अ वेरी वेल मैनेज्ड मैनर ही प्रेजेंट देयर प्रेजेंटेशन इन अबाउट इन रिसर्च मैथोलॉजी. थैंक यू सो मच. सो सर को सुनने के बाद सबसे पहले क्वेश्चंस मेरा ये बच्चों से है, क्योंकि आप सब स्टूडेंट हैं अभी, यू आर डूइंग द रिसर्च एंड पीजी, तो यू आर डूइंग द प्रोजेक्ट वर्क आल्सो. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च? सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज रिसर्च? री एंड सर्च, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन री एंड सर्च? सर्च इज, what is the search? Search means you are invented in a first time, that is the search, and after that searching things you can again and again many person अपने हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं. So that is the research. So again the question is arising, what is the research, and is the research and research methodology is both are the same? तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये दोनों चीजें सेम है. मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ मैम, देखिएगा, बताइएगा मुझे. इज इट विजिबल नाउ? यस मैडम, इट इज विजिबल. यू राइट. सो मेरा क्वेश्चन ये था बच्चों से कि व्हाट इज द रिसर्च एंड द रिसर्च मेथोलॉजी, क्या दोनों ही चीजें सेम है?
तो क्योंकि जब तक दोनों में डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा, आप रिसर्च और रिसर्च मेथोलॉजी का मतलब नहीं समझ पाएंगे और चीज़ें आप बेटर मैनर में नहीं कर पाएंगे. सो रिसर्च क्या है? दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द एनी टाइप ऑफ सर्चिंग. दिस इज द एप्लीकेशन, राइट? एंड मैथोलॉजी, रिसर्च मैथोलॉजी, दिस इज द पार्ट ऑफ द रिसर्च. यानी एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि यदि मैं चाय बनाती हूँ, एक तो सिंपल एग्जाम्पल इसलिए बताना चाह रही हूँ कि यदि मैं बोलती हूँ कि मैं ब्लैक टी एंड मिल्क टी, दो टाइप की टी है, तो व्हाट इज द थिंग्स, टॉपिक्स इज टू टाइप, दैट इज द मिल्क टी एंड द ब्लैक टी. तो ये जो है दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज द रिसर्च पे मैंने रिसर्च करा कि यार दो टाइप से चाय बन सकती है, राइट? लेकिन in which method we can make that black tea and the milk tea, that is the research methodology. In a simple manner way we can say that is the research and the research methodology. So in a simple you can say that the research is the established knowledge, right? And we can expand our experience in a natural phenomena, right? So what scientific approach of the research is, we can involve the principle and process regarding the characteristics of necessary of the scientific investigations, राइट? तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ? एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो होती है कि हमने एक सिस्टमेटिक अप्रोच के सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जैसे सर ने कल बताया था कि ऑब्जेक्ट मैंने डिसाइड कर लिया, ऑब्जेक्ट डिसाइड होने के बाद मेरे वेरिएबल डिसाइड हो गए, वेरिएबल डिसाइड हो गए तो हाउ आई कैन कलेक्ट दैट वेरिएबल फ्रॉम द वेयर इन विच रिसोर्सेज दैट रिसोर्सेज इज रिलायबल और नॉट और लाइक दैट. सो इसलिए हम इसको बोलते हैं द रिसर्च इज अ वन टाइप ऑफ साइंटिफिक अप्रोच. So already that I told the research and the what is the difference between the research and research methodology. Research is the application and research methodology is a part of that application. It may be clear to everyone now. So introduction of the research. So what is research? सबसे पहले research क्या होती है? अब आप research बोलते हैं कि यार clinical है तो भी वो research है, formulating है तो भी वो research है, और यदि वो आर्ट वाली है, जैसे किसी ने दो कलर्स मिला करके नए कलर इन्वेंट कर दिया, दैट इज ऑल्सो रिसर्च. तो व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च is the academic activities or the simple? No, research is a one type of academic activity as well as we can see that this is the we can use for the social cause. जब तक research social cause से नहीं जुड़ेगी उस research का कोई भी meaning नहीं है. research आप जो भी करें उसका हमें हमारी सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए, तभी हम उसको डिफाइन कर पाएंगे. अदरवाइज वो रिसर्च किसी काम की नहीं है, किसी भी तरह से हम उसको यूज नहीं कर सकते. इसलिए कहते हैं कि रिसर्च इज कंप्राइज्ड डिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग बेस्ड ऑन द formulating hypothesis. Hypothesis you can say that this is any type of assumption. आप क्या सोचते हैं, उस सोच को आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, उस सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या मेथड यूज किया, दैट इज एक्चुअली बेसिकली द रिसर्च एंड रिसर्च मैथडोलॉजी, राइट? सो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्यों है रिसर्च? सो हर्डन मैक्सिम के अकॉर्डिंगली डाउट इज बेटर देन द ओवर कॉन्फिडेंस. यदि आपने रिसर्च कर लिया, यू कैन से दैट आई एम now I investigate this one. Now you can stop your research at that position. So your research is stopped. वो उससे बेटर होता, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैंने ये रिसर्च करी, इसमें और भी कुछ बेटर हो सकता है क्या, इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है. सो इसीलिए ऑल प्रोग्रेस इन बॉर्न ऑन इंक्वायरी एंड दिस टू लीड्स ऑफ सेंटेंस inquiry and the inquiry leads to invention. We can say that this is the importance of research for students. Research means career. आपका रिसर्च क्यों करना चाहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि वो कैरियर बनाना चाहते हैं उसमें, इसलिए वो लोग रिसर्च करना चाहते हैं. लेकिन क्यों कैरियर के साथ साथ क्या है, जैसे मैंने आज कोई रिसर्च करी है, मेरी एज हो गई, अब आप नया जनरेशन आया, स्टूडेंट है, नई सोच होगी, तो वो उस हिसाब से उसको सोचेंगे, तो आज के मैनर में उनका रिसर्च ज़्यादा बेटर होगा मेरे रिसर्च से. सो इसलिए
research is important for in the student manner to क्या ना चाहिए spread the knowledge of to the our societies. ऐसी तरह से जैसे मैं प्रोफेशनल रिसर्च की बात करूं तो प्रोफेशनल रिसर्च किसके लिए कहते हैं, लाइवलीहुड, जैसे टीचर्स है, साइंटिस्ट है, कई बार वो लोग की जो रिसर्च है वो किसके लिए है कि मुझे जैसे सर ने कहा था कि प्रोफेसर बनना है, एसोसिएटेड प्रोफेसर बनना है, सो यू नीड अ डॉक्टरेट, उसके बिना आप अपने एकेडमिक करियर नहीं बढ़ा सकते. सो दिस इज टाइप ऑफ प्रोफेशनल रिसर्च, ठीक है, फॉर द लाइवलीहुड, फॉर योर सोर्स ऑफ इनकम. इसी तरह लिटरेचर्स में क्या हो जाएगा रिसर्च का मीनिंग, यू कैन इन्वेंट द आर्ट, invent the new things, invent the new type of work, that is the art or the literature research. और इसी तरह से एनालिस्ट रिसर्च क्या हो जाएगी कि जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उस इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, नई नई चीज़ें सोची और उसको इन्वेंट करने की कोशिश करी. सो एनालिसिस जो कि ऑलरेडी डन है. तो रिसर्च एक टाइप से क्या है कि जो हम उसमें कोई भी सर्चिंग है उसमें जो हिडन पार्ट है जो कि पहले किसी ने इन्वेंट नहीं किया है, उस हिडन पार्ट को आप बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज द रिसर्च. ठीक है, ऐसी रिसर्च होना चाहिए. ये नहीं ऑलरेडी जो हो गया जिसको जो सर ने बताया था कि कॉपीराइट है या जो है उस टाइप से हम उसको ले पाएंगे. राइट, नेक्स्ट मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि साइंटिफिक रिसर्च क्या है, सो आई कैन स्किप दिस वन. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए रिसर्च की, मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, प्रिसाइज, वेरीफिएबल, पार्सिमोनियस, एम्पेरिकल, लॉजिकल, प्रोबेबिलिस्टिक. ये तो पार्ट है क्या, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज प्रिसाइज, व्हाट इज वेरिएबल, पार्सिमोनियस, ये सब चीज़ें हैं क्या, इतने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज दिस वन, साइंटिफिक अप्रोच, व्हाट इज दिस. सो ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले मैंने बहुत सारा देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो वो उनकी सोच कुछ रहती है कि हमें इस फील्ड पे रिसर्च करना है. आरडीसी जाते जाते उनका टॉपिक चेंज हो जाता है, पता चला फाइनल थीसिस जाते जाते उनका फिर टॉपिक चेंज हो जाता है. तो ऑब्जेक्ट ही उनका डिसाइड नहीं होता, तो आप उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यूर ऑब्जेक्ट और यूर प्रोजेक्ट इज एक्यूरेट. सो ऑब्जेक्ट सबसे पहले मेन होता है. प्रिसाइज, व्हाट आई एम सेइंग, प्रिसाइज एकदम एक्यूरेट होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट है मेरा और इस ऑब्जेक्ट पे मुझे कितने वेरिएबल डालने हैं, क्या क्या मुझे इनपुट देना है, वो बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए. बिफोर वन डे यू कैन already you can decide it, I have to use this type of variables or this type of inputs in my projects, in my research work. ठीक है, so that will be said a precise. Verifiable, it will be very clearly defined होना चाहिए. डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि क्या ये वेरिएबल इसमें यूज हो सकता है. अब ये वेरीफिएबल है या उसके लिए क्या होगा, हमें जो लिटरेचर सर्वे करना होता है वो सारी चीज़ें हमें करनी है. लिटरेचर सर्वे जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप ये प्रिसाइज और वेरीफिएबल्स वर्क नहीं कर पाएंगे. लिटरेचर सर्वे इज मस्ट. Before starting your entrance examination of PhD or any PG program, you can do the literature survey. जब तक आप लिटरेचर सर्वे नहीं करेंगे आप अपने प्रोजेक्ट, अपने रिसर्च के लिए आप कभी भी क्लियरिफिकेशंस नहीं दे पाएंगे. ठीक है, पार्सिमोनियस, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम रिसोर्सेस हैं, इनकम की प्रॉब्लम्स हैं, तो रिसर्च ऐसे होना चाहिए जो कम टाइम में, कम पैसों में या कम इनकम में और कम सोर्सेस में उसको हम मोस्ट बेस्ट रिजल्ट्स के हिसाब से दे पाएँ, ऐसा होना चाहिए. दैट इज अ पार्सिमोनियस. एम्पेरिकल, जो कि एक सोशल कॉस्ट के लिए होना मस्ट है. जब तक आपका रिसर्च सोशल कॉस्ट में यूज नहीं हो रहा है देन योर रिसर्च इज नथिंग इज देयर. लॉजिकल तो होना ही चाहिए कि यदि आप उस किसी चीज़ को बोल रहे हो कि ये सही है तो व्हाई, यू हैव टू गिव द रीज़न, you have to give the reason for that particular your result. लॉजिकली होना चाहिए ताकि आप उसको स्पेसिफाइड कर पाएँ.
देन द प्रोबेबिलिस्टिक, जब तक उसमें संभावनाएं आगे की नहीं दिखेंगी आपका रिसर्च बेकार है। यदि मैंने कर दिया कि मुझे मेरा जो भी रिसर्च है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर आई थिंक ये जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कर रहा है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि प्रोबेबिलिस्टिक क्या हुआ कि यदि एक रेनफॉल या उसको क्या बोलते हैं, रन ऑफ, रेनफॉल एंड रन ऑफ, टू वेरिएबल्स आपके इसमें आते हैं बेसिकली इन सिविल इंजीनियरिंग्स में। उन दोनों में क्या रिलेशनशिप्स होता है और क्या उसके बेसिस पे जो हमारे यहाँ जो बाढ़ आती है, क्या आप इसको क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि सही टाइप से रिसर्च नहीं हो पा रही। आपने लिटरेचर सर्वे प्रॉपर किया नहीं कि हर 10 साल में आती है या हर 5 साल में आती है, तो क्यों आती है, व्हाई द रीज़न। उस रीज़न को दूर करने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। हम लोग उसकी प्रोबेबिलिस्टिक नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका एक फ्यूचर में बहुत अच्छा से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि यार 5 साल बाद इतनी रेनफॉल होगी तो इतना रन ऑफ होगा तो इतनी बाढ़ आ सकती है। इसके कारण आज तक बाढ़ का जो रीज़न है वो हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हर साल बारिश में ये प्रॉब्लम होती है। अब ये कोविड पैंडेमिक एक नया आया लास्ट टाइम, वो तो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती है, ये तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। लेकिन यहाँ पर भी आज रिसर्च काम कर रही है। यदि साइंटिस्ट उसके लिए कोविड वैक्सीन के लिए रिसर्च नहीं करेंगे तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, दे आर द लिटरेचर सर्वे। वो हर टाइप की बीमारी का लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं, उससे हर टाइप की बीमारी के लिए अलग अलग वैक्सीन्स निकालते हैं और उसका एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, देन दे गिव द रिजल्ट्स। तो वो सोशल कॉस्ट के लिए हो गया। यदि उनकी रिसर्च सोशल कॉस्ट के लिए नहीं है तो आज हम लोग जो बिना मास्क के फिर भी थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, जो नहीं घूमना चाहिए, वो नहीं कर पाते। तो सोशल कॉस्ट इज द मस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ रिसर्च। सिग्निफिकेंस का मीनिंग है कि सोशल, आपकी जो रिसर्च है वो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, इसलिए उसको मैं बोल रही हूँ सिग्निफिकेंस, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोटिवेशंस। रिसर्च आपकी इसलिए प्रोबेबिलिस्टिक जो मैंने वर्ड यूज किया था प्रोबेबिलिस्टिक, दैट इज द मोटिवेशंस, कि जब तक आपकी रिसर्च किसी को मोटिवेट नहीं कर रही है कि इसके आगे और ये काम हो सकता है, तब तक वो रिसर्च भी किसी काम की नहीं, क्योंकि आपका काम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। उसको कौन आगे बढ़ा रहा है, दैट इज द मोटिवेशंस। इसलिए मोटिवेशंस इज also important. What makes the people to undertake research? Desire to get the research degree, desire to face the challenge, desire to get the intellectual joy, service to society, respectability, government, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए तो रिसर्च सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो हमारा दिया हुआ है, पब्लिक का पैसा है, टैक्स का है, जिसको वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए रिसर्च इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो होता नहीं है, इसीलिए पैसे जो हमारा इकोनॉमिक है वो वेस्ट हो जाता है। द बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च, जैसे कल शायद एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द अप्लाइड रिसर्च, ये क्वेश्चन आया था। ऐसी बहुत सारी टाइप्स की रिसर्च होती हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक, अप्लाइड, फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कंसेप्चुअल, एम्पेरिकल। ये मेनली आपकी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं और ये हर फील्ड के लिए अलग अलग टाइप से हम इसको चूज करते हैं। तो मेनली द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, डिस्क्रिप्टिव्स ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड दैट इज एग्जिस्ट एंड प्रेजेंट। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन यूज करता है, हु आर द यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मेनली द कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। जो रिसर्चर्स है कोई भी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स फाइंड करने के लिए रिसर्च करता है या जो वर्क करता है, उसी को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलेंगे, ठीक है। एनालिटिकल रिसर्च, ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उस इंफॉर्मेशन से हम क्या और नई इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं, और जो वे है वो कौन सा वे हम यूज कर रहे हैं, उसी को हम एनालिटिकल रिसर्च बोल सकते हैं। यू कैन से दैट द रिसर्च हैज टू यूज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड analyze this to make the critical evaluation of the material. Applied research, और द क्वेश्चन सर ने कल बहुत अच्छे से अप्लाइड को एक्सप्लेन किया था, और मैं थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट न्यू प्रॉब्लम फेसिंग सोसाइटी और इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड
ऑर्गेनाइजेशन। अप्लाइड क्या है, जो मेनली जो इंजीनियरिंग फील्ड्स में होता है वो बेसिकली अप्लाइड होता है। आप क्या करते हैं, ऑलरेडी जो फॉर्मूले स्टैब्लिश्ड हैं उस स्टैब्लिश फॉर्मूलेज को किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैसे यूज करना है वो करते हैं, उसी को हम अप्लाइड बोलेंगे। जैसे एप्लीकेशन एरिया मैंने बताया, रिसर्च टू आइडेंटिफाई द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स। अब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रेंड, अब जैसे पॉलिटिकल ट्रेंड में क्या हुआ, जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं, अभी चुनाव में क्या हो रहा है, अप्लाइड कैसे आप कर रहे हैं कि आप पिछले 10 साल का डेटा है उसकी रिसर्च निकालते हैं कि 10 साल में कहाँ पर कितने किसके वोट पड़े, क्या हुआ, ये सारी आप एनालिसिस टीवी में देखते रहते हैं, ठीक है। तो वो भी एक टाइप से क्या है, दिस इज द अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आपने निकाला और उसको एनालिसिस किया थ्रू द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, ठीक है। दिस स्टैटिस्टिकल प्रोसेस यू कैन से ऑलवेज इज द अप्लाइड, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या है, दिस इज द अप्लाइड पोर्शन ऑफ द मैथमेटिक्स। जब तक किसी भी रिसर्च में आप स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई नहीं करेंगे वो रिसर्च आपकी कंप्लीट नहीं होगी। फंडामेंटल रिसर्च क्या है, the basic research is directed towards finding the information that has a broad base of human application and thus add the along existing and organized body of the scientific knowledge, ठीक है। सो नेचुरल फेनोमेना, फंडामेंटल रिसर्च कहाँ यूज होता है सबसे ज़्यादा, नेचुरल फेनोमेना। जैसे मैंने अभी आपको एक सिविल वाला जो एग्जांपल दिया था, रन ऑफ और रेनफॉल, इस टाइप की जो रिसर्च है उसमें आप फंडामेंटल ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश थ्योरी है उस थ्योरी को आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे उसका रिजल्ट निकालते हैं, बेसिक थ्योरी को आप स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, बस उसका अप्लीकेशन कर रहे हैं। तो दैट इज द फंडामेंटल और द प्योर रिसर्च, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च that basically based on the quantity or you can say that the data in a numerical form, ठीक है। क्वांटिटी मतलब एक न्यूमेरिकल नंबर है और इसीलिए स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ द वर्चुअल ऑफ द क्वालिटी और काइंड ऑफ एनी एक्शन मटेरियल प्रोसेस, यू कैन से दैट द क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग पर्सन ही यूज़ करता है, ठीक है। इसलिए मैं स्पेशली इसको बोल रही हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में मेनली जो हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे, साइंस साइड्स के स्टूडेंट होंगे, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का यूज़ ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनका वर्क एक्सपेरिमेंटल भी है, तो दे कैन यूज़ द डेटा एंड दिस डेटा you can analyze by the statistical manner. So your process or your research should be called the quantitative research. Conceptual research mainly कहाँ पर होती है, जो कि philosophers और thinkers they are using, जो आइंस्टीन की थ्योरी है या ड्राइंग प्रिंसिपल और इवैल्यूएशंस है, ये एक्चुअली कंसेप्चुअल है। मतलब इस ये कंसेप्ट दिया है उसने, उस कंसेप्ट को आप नेवर यू कैन चेंज दैट कंसेप्ट, उसने उस कंसेप्ट को दिया और इसको प्रूफ किया है। तो इस टाइप की जो रिसर्च है वो कंसेप्चुअल होती है, लॉन्ग टू लॉन्ग ड्यूरेशन और लॉन्ग टू लॉन्ग टर्म time that we can use that conceptual research. Even our quantitative research, your applied research, your fundamental research, you can use the conceptual research knowledge जब तक ये basic conceptual knowledge है जिसको आप use करते हैं। Empirical production of desired information by the fixed data and their sources and using appropriate method of analysis and स्टिम्युलेटेड, इसको हम एक्सपेरिमेंटल एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलती जा रही हूँ ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या हुआ कि जो आपने एक्सपेरिमेंट के बाद कोई डेटा निकाला, ठीक है, तो वो आपका जो रिसर्च कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल या इसको एक्सपेरिमेंटल। लेकिन यदि आपने गिवन डेटा का कोई यूज आप कर रहे हो तो आप क्या करोगे,
मतलब ऑलरेडी किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है और जस्ट उस डेटा को आप यूज कर रहे हो, वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, उसको आप एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं बोल सकते। ठीक, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या हुई कि आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपने डेटा निकाला या क्वांटिटी या नंबर में निकाला और यू कैन एनालाइज दैट वन, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो जो हमारे लैबोरेटरीज में होता है, जो कि ये कोविड वाला जो हो रहा है, दैट इज ऑल्सो यू कैन से दैट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो लैब oriented research always in the part of experimental result. Some other type of research, बहुत सारी अलग अलग टाइप की जो छोटी छोटी रिसर्चेस होती हैं, इनको भी हम एक छोटे से मैनर में कुछ क्लासिफाइड कर सकते हैं। टाइम क्लासिफाइड, एनवायरमेंटल क्लासिफाइड, केस स्टडी क्लासिफाइड, हाइपोथेसिस क्लासिफाइड एंड हिस्टोरिकल रिसर्च, कंक्लूजन, ये भी एक टाइप से रिसर्च है। जैसे टाइम वन टाइप ऑफ रिसर्च ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, मतलब जो हम कहना चाहिए जोग्राफिकल रिसर्च जो होती है, वो वी कैन से दैट इज अ टाइम क्लासिफाइड। एनवायरमेंटल की जैसे आजकल हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस टाइप की जो वो क्या टाइम टू टाइम या टाइम सीरीज हम जिसको बोलते हैं कि टाइम टू टाइम हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो दैट इज द एनवायरमेंटल क्लासिफाइड रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च, जैसे अभी जो चल रहा है डायग्नोस्टिकल और क्लिनिकल, उसमें हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी केस होते हैं उसको स्टडी करते हैं और उसके रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट निकालते हैं, इसको हम केस स्टडी कहते हैं। इसीलिए जब लिटरेचर रिव्यू, जैसे मैंने आपको कहा था, जो स्टूडेंट जितना लिटरेचर रिव्यू करेगा उसके मन में उतने क्वेश्चंस आएंगे, उसकी उतनी रिसर्च रिफाइन होगी और वो ज़्यादा इम्पैक्ट देगी किसी भी सोसाइटी को। यदि आपने सोचा कि बस मैं 2 रिसर्च पेपर पढ़ लूँ और मैं इसके बाद अपना टॉपिक डिसाइड कर लेता हूँ, आरडीसी दे देता हूँ, सो आप एक सही तरीके से रिसर्च को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? इट्स डॉक्यूमेंट्री, रिमेन्स, आइडियाज, स्टडीज पास्ट इवेंट्स, जो कि हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ, वो उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च बोलेंगे। अब दिस हिस्टोरिकल रिसर्च ये है तो क्योंकि, लेकिन यदि किसी ने इस हिस्ट्री को डिफाइन रिसर्च नहीं किया होगा और उस हिस्ट्री को मुझे आज के मैनर में यूज करना है तो मैं कैसे करूँगी? तो वो रिसर्च भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ मैंने इसको इम्पॉर्टेंट मतलब एक मेंशन किया है कि दिस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ रिसर्च। जो हम रिव्यू करते हैं दैट इज ऑल्सो से दैट दिस इज वन टाइप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, वो हिस्ट्री हो चुकी है, अब आप उस हिस्ट्री को यूज कर रहे हो और यू कैन डू योर वर्क, योर ऑन वर्क, दैट इज द हिस्टोरिकल रिसर्च। कंक्लूजन, उसके बाद जो भी आप रिजल्ट निकालते हैं और अपनी एक व्यू देते हैं, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिसर्च। क्योंकि जब हम केस स्टडी करेंगे, जब हम लिटरेचर रिव्यूज करेंगे, तो वो जो हमारे व्यूज हैं उसको भी मेंशन करते हैं। इसलिए जो हम रिसर्च करते हैं उसमें हिडन ढूंढना चाहते हैं, तो हिडन कब हम ढूंढ पाएंगे कि ये हो चुका है? जब भी वो स्टेटमेंट आपने पढ़ा तो वो स्टेटमेंट आप पढ़ने के बाद मिलेगा अरे ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, तो अब मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि आपने ये जो हो चुका है क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो रिसर्च में एक्चुअली जब जितनी क्यूरीज होंगी, जितने क्वेश्चंस होंगे, उतनी अच्छी ही रिसर्च होगी। स्टेप्स, जैसे सर ने कल बताया था कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च जो होती है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में उसको हम मैनेज कर पाए। सो ऑर्डर ऑफ वेरियस स्टेप्स इन रिसर्च इज फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन का मतलब कि आप उस ऑब्जेक्ट को किसी भी ऐसे व्यक्ति के सामने प्रेजेंट कर पाए जिसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी वो उस चीज को पूरा अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, कि हाँ व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग, क्योंकि सामने वाले को तो रिसर्च के मामले में हो सकता है आप प्रेजेंटेशन किसी के सामने दे रहे हैं और उसको उस चीज़ का कोई भी नॉलेज नहीं है, बट आपने ऐसा फॉर्मुलेशन दिया है कि वो आपके ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, आपके ऑब्जेक्ट को समझ पा रहा है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फॉर्मुलेशन। आप फॉर्मुलेशन कैसा कर रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट।
एग्जिस्टिव लिटरेचर सर्वे, जैसे मैंने बोला, किसी भी रिसर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिटरेचर रिव्यू। तो आप जब थीसिस लिखते हैं तो उसमें लिटरेचर रिव्यू लिखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो एग्जामिनर है या जो सामने बैठा है उसको पता नहीं है कि ये आपने ऑब्जेक्ट कहाँ से निकाला है, आप थोड़ा सा उसको रिव्यूज़ बताएंगे तो वो उसके दिमाग में आएगा कि हाँ उसने ये यहाँ से पढ़ा और यहाँ से उसने इस ऑब्जेक्ट को निकाला या इस व्यू को निकाला या इस एम को निकाला। इसलिए एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वेज इज मोर इम्पॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। डेवलपिंग द हाइपोथेसिस एजम्पशन। हाइपोथेसिस मीन्स एजम्पशंस, कि जब तक आपका एजम्पशन खुद का नहीं होगा आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिटरेचर सर्वे करके आपने एक हिडन रिसर्च तो उससे निकाला और उसमें अपनी हाइपोथेसिस डाली और उस हाइपोथेसिस को आपने क्या किया, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज अवर एम ऑफ माय रिसर्च। सो डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, वो भी आपको बताना है कि आपने कहाँ से वो डेवलप करी। ऐसा नहीं है कि हवा में आ गई है। जब तक आप उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से सामने वाले को नहीं बताएंगे कि वेयर आई कैन गेट दिस आइडिया, सो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड योर व्यू इन अ प्रॉपर मैनर। डिटरमाइनिंग द सैम्पल डिजाइन, जैसे सर ने बताया था कि आर्किटेक्चर जैसे एक घर बनाने के पहले पूरा एक डिजाइन रेडी करता है, उसी तरह से सबसे पहले जब आपने एम डिसाइड कर लिया तो आपके दिमाग में पूरा एक डिजाइन होना चाहिए कि ये मेरा एम है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था रन ऑफ और रेनफॉल का, कि मुझे प्रिडिक्शन करना है कि पिछले यदि मैं 10 साल का रन ऑफ और रेनफॉल लेवल किसी भी रिवर का लूँ और उससे एनालाइज कर पाऊँ कि यदि इस टाइप की रेनफॉल होती है और ऐसा रन ऑफ होता है तो इसमें क्या मैं फोरकास्टिंग कर सकती हूँ, या तो एक यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रोबेबिलिस्टिक मैनर हो गया। एक ये प्रॉबेबली एक संभावना दिख रही है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो हम, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए। डिज़ाइन क्या होना चाहिए कि मुझे कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, किस स्टेशन का मुझे डेटा चाहिए होगा, वो डेटा मुझे कहाँ से लेना होगा और वो डेटा कैसा होगा, ऑथेंटिक होगा या मुझे खुद एक्सपेरिमेंटल करना होगा। ये आपका ऑलरेडी पहले से डिज़ाइन होना चाहिए। तो सैंपल डिज़ाइन, कहाँ का सैंपल लेना है, और यदि मैं पर्टिकुलर उस स्टेशन का सैंपल ले रही हूँ या उस जगह का सैंपल ले रही हूँ तो वो कहाँ कहाँ के लिए एप्लीकेबल होगा। जब तक हम ये डिज़ाइन या सैंपल हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होगा, वी कैन नेवर डू द इन प्रॉपर मैनर इन आवर रिसर्च। कलेक्टिंग द डेटा एज इट, जैसे मैंने बताया कि स्टेशन जब तक डिसाइड नहीं होगा कि मुझे इस स्टेशन का डेटा लेना है तो मैं कहाँ से वो डेटा कलेक्ट करूँगी। सो कलेक्शन ऑफ डेटा इज मोर इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स को कैसे आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं तो क्या आपको कोई स्टाइपेंड मिल रहा है, क्या आपको कुछ कॉलेज की तरफ से हेल्प मिल रही है कि आप ये रिसर्च वर्क करेंगे, हम आपको यहाँ से डेटा प्रोवाइड कराने में हेल्प करेंगे। तो दैट इज शुड बी ऑल्सो क्लियर, एंड वेयर यू कैन गेट योर डेटा, दैट इज ऑल्सो इट very clear manner. You can collect the data and execution the projects, analysis of the data, and after analysis you can testing your hypothesis, or you can say that testing your assumption. आपने assumption तो कर लिया, आपने रिजल्ट भी दे दिया कि हाँ मैंने ये डेटा लिया था, इससे ये रिजल्ट निकाला, लेकिन क्या वो सही है, उसकी टेस्टिंग होना भी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा था कोई भी जो रिसर्च है, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो, चाहे वो अप्लाइड हो, जब तक उसमें हम स्टैटिस्टिक्स नहीं डालेंगे तब तक वो एक वैलिड रिजल्ट्स के रूप में हमारे सामने नहीं आएगी। इसीलिए जब हम अभी जो कोविड
जो कि एक हमारे सामने प्रेजेंट है में एग्जांपल कोविड का ही है, एक जो सबसे बड़ी अभी पैंडेमिक है हमारे सामने, उसके लिए जो हम कह रहे हैं कि वैक्सीन हमने यहाँ ट्रायल करके देखी या यहाँ ट्रायल करके देखी, इसके ये रिजल्ट्स आए, उसके वो रिजल्ट आए, तो उसकी ये टेस्टिंग हुई है और उस टेस्टिंग की वैलिडिटी चेक करी जा रही है और उस आफ्टर वैलिडिटी गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी कि यस दिस इज द वैक्सीन will be used by human resources or human life. ठीक है, जनरलाइजेशन एंड इंटरपोलेशंस, सॉरी जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशंस, यानी उसके बाद जो हम जो भी अपना रिजल्ट देते हैं उसका इंटरप्रिटेशन, जो टेस्टिंग करी उसका जस्टिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन यू कैन से दैट जस्टिफिकेशन इज नेसेसरी। जब तक आप उसको जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे आपकी रिसर्च अप्रूव नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए दो वर्ड आप लोग सुनते आ रहे होंगे, रिसर्च एंड एक नया वर्ड आता है पैटेंट। ठीक है, तो रिसर्च तो क्या हुआ, ऑलरेडी जो मतलब जो सर्च है उसको आप बार बार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसमें से उस हिडन सर्च को बाहर निकाल रहे हैं जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए उसको हम रिसर्च बोल रहे हैं। लेकिन पैटेंट एक प्रकार से क्या है, वो फर्स्ट टाइम होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि ये इसके नाम पर है, ये पैटेंट है, ये इसके नाम पर है। ठीक है ना, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पैटेंट एंड रिसर्च। क्योंकि ये स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि रिसर्च और पैटेंट विल बी सेम, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। रिपोर्ट राइटिंग और प्रेजेंटेशन द रिजल्ट्स, सर ने ऑलरेडी इसके बारे में कल काफ़ी कुछ बता दिया था, सो इसी को मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में दिया था। मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर, क्योंकि ये जो मैं सारी जो ऑब्जेक्टिव और वेरियस स्टेप्स को मैंने किया था ये मैंने फ्लो चार्ट में किया, जो कि इसको मैं स्किप कर देती हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्च क्या है, रिसर्च की क्वालिटी कैसी है और उसको हम कब गुड बोलें और कब बैड। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है जब आप रिसर्च मैथोलॉजी का एग्ज़ाम देते हैं तो ये क्वेश्चन मस्ट होता है कि व्हाट इज़ योर क्वालिटी ऑफ रिसर्च, आपकी क्वालिटी कैसी है। तो गुड रिसर्च हम किसे बोलेंगे, दिस इज़ द सिस्टमेटिक, मोस्ट प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग्स, लॉजिकल, एम्पैरिकल एंड रिपब्लिकेबल, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी को वो जो हमने ऑब्जेक्ट्स दिए थे वही एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट मैनर में ले रहे हैं, सिस्टमेटिक मैनर में लिए हैं, वही एक सबसे अच्छी गुड रिसर्च कहलाती है। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक रूप में या एक ब्रीफ एक्सप्लेन किया हुआ है। क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च क्या है, द रिसर्च आपका गोल सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए, what should you want in your aim, और कैसे उसका प्रोसीजर, उसकी डिज़ाइन, उसकी रिपोर्ट, उसकी एनालिसिस, रिलायबिलिटी, रिसर्च ऑब्जेक्ट जस्टिफिकेशंस, एंड आफ्टर दैट यू कैन नॉलेज, योर एक्सपीरियंस एंड your probabilistic manner, all such things are clarified that you can say that your research is good. So that is the criteria of good research. सर ने जैसे इथिक्स की बात करी थी कि मैंने आपको यही बोला पैटेंट और रिसर्च, ठीक है। अब वहाँ पर कॉपीराइट होता है तो हम इथिकली दैट इज नॉट अ गुड मैनर इन अ रिसर्च, जो कि अभी मोस्ट ऑफ द पर्सन्स करते हैं। इंटरनेशनल इतने सारे जर्नल्स हो गए हैं, वहाँ देखो तो एक एक पेपर कई बार पब्लिश हो रहा है। दैट इज नॉट इन इथिक्स in a research, this is not a good practice. So plagiarism, fabrications, falsifications, non publication of data, मतलब आप जो भी डेटा करते हैं ना वो यदि पब्लिश नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है हम अपना काम तो कर लेते हैं, अपना डेटा भी अपने इससे रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन हम उसे पब्लिश करने से डरते हैं। क्योंकि क्यों डरते हैं, क्योंकि कहीं ये ना हो जाए कि वो डेटा हमने कहीं किसी का कॉपीराइट किया। यदि आप खुद अपना करेंगे, खुद अपना एक्सपेरिमेंटल करेंगे तो आप उसको पब्लिश करने से कभी नहीं डरेंगे। तो वो दैट इज द पब्लिकेशन ऑफ डेटा, फैकल्टी फॉल्टी डेटा गैदरिंग प्रोसीजर्स। तो
इसीलिए फॉल्टी डेटा क्या हुआ कि जो आपने ऑलरेडी किसी ने उस वर्क को उस डेटा पे काम किया था उसी को आपने भी यूज़ कर दिया, तो वो फॉल्टी डेटा हो जाएगा, क्योंकि वो जिसने पहले किया है वो आपके डेटा को बोलेगा कि आपने मेरा डेटा यूज़ किया. सो यू कैन से दैट फॉल्टी डेटा. पुअर डेटा, मिसलीडिंग ऑथरशिप्स. मिसलीडिंग ऑथरशिप्स मतलब आप जो लिख रहे हैं वो आपकी ऑन होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए. जो हम कॉपी पेस्ट करके हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना कि किसी को पैसे दे दिए और हमने कर दिया, तो वो क्या करता है, जस्ट ऊपर का टाइटल चेंज करता है, उसके कंटेंट उसको मालूम है कोई पढ़ने वाला नहीं है, उस काम को कोई करने वाला नहीं है. तो अपन क्या करें, जस्ट उसको तो उसका मेन जो टॉपिक है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको चेंज किया और उसके हमने एज इट इज पब्लिश कर दिया. तो इसी को हम मिसलीडिंग ऑथरशिप बोलेंगे. स्नीकी पब्लिकेशन प्रैक्टिस. स्नीकी मैंने आपने बोला ढेर सारे इंटरनेशनल जर्नल्स हो गए हैं जो कि पैसे लेते हैं और पब्लिश करते हैं, इसी को हम स्नीकी जर्नल्स बोलते हैं, राइट. इसी को मैंने काफ़ी, क्योंकि मैं एक्चुअली RGPV में क्लास लेती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मैंने प्रेजेंटेशन रेडी किया हुआ था. मैं आपको मेनली जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके बारे में कैसे आपको काम करना चाहिए, मेनली वो कहना चाहिए कि मैं मेनली आपको वो बताना चाह रही थी या एक्सप्लेन करना चाह रही थी, क्योंकि आप सब साइंस स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा अप्लाइड अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करेंगे या साइंटिफिक रिसर्च का यूज़ करेंगे. तो आपका जो काम है वो डेटा से रिलेटेड होगा, और वो डेटा से ये रिलेटेड है तो उसमें किस टाइप के डेटा आपको यूज़ करना चाहिए पहले वो क्लियर होना चाहिए. तो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स, ये एक टॉपिक आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, कि आप जो मेज़रमेंट है, जो आप मेज़रमेंट कर रहे हैं उसके लिए आप कौन कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं वो पहले डिफाइन होना चाहिए. तो पहला है जैसे नॉमिनल स्केल, system of assigning the number symbol to categories or group in order to label them. You can see that this is the nominal scale. तो nominal scale मतलब एक क्वांटिटी वाइज नहीं होगा, ये एक क्वालिटी वाइज होगा. यहाँ पर आप इसको एक किसी नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट. ये क्या हुआ, इसमें आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो फर्स्ट और सेकंड दिया है, दिस इज द नॉमिनल नेम दिया है, ठीक है. इट्स नॉट ए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट, दिस इज द नंबर. लेकिन नॉमिनल स्केल द सिस्टम ऑफ असाइनिंग द नंबर सिंबल ऑफ कैटेगरीज और ग्रुप इन ऑर्डर टू लेबल दैट. जैसे जेंडर, इनकम ग्रुप्स, एज ग्रुप्स. तो एज ग्रुप्स फर्स्ट 5 to 10 years, then 10 to 20 years, this age groups, this you can say in the nominal scale, ठीक है. और ये सबसे ज़्यादा नॉमिनल स्केल हर जगह यूज़ नहीं होता, ये हमारे रिसर्च पे, आप किस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं, फंडामेंटल कर रहे हैं, कंसेप्चुअल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप की आप नॉमिनल स्केल्स को यूज़ कर रहे हैं, राइट. सेकेंड है आपके पास ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल स्केल क्या है, सिस्टमेटिक प्लेसिंग वेरिएबल इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव साइज. जैसे मैंने मिनिमम, मैक्सिमम, तो मिनिमम मैक्सिमम हमने ये जो नाम दिए, रैंक दिया है ना. अब जैसे रैंक को रिलेशन निकालते हो तो आप उसमें रैंक देते हो, पढ़ा होगा क्योंकि सब साइंस स्टूडेंट्स हैं, तो रैंक और रिलेशन सब ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा. तो जहाँ रैंक हम करते हैं तो उस मेजरमेंट को हम ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं. और इसको ब्रांड बाय द रिस्पॉन्ड रैंक ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस इज द ऑर्डिनल स्केल. इन इंटरवल स्केल क्या हुआ, जैसे मैंने आपको एज ग्रुप पहले नॉमिनल स्केल बताया था, नॉमिनल में आपने एज ग्रुप दिया 5 to 10, 10 to 15, ठीक है. अब इस आपने उस वहाँ पे नंबर लिया और इस नंबर को आपने एक इंटरवल में कर दिया, तो यू कैन से दैट दिस इज द इंटरवल स्केल. 1 मिनट मेरी शायद बैटरी लॉस हो रही है, मैं ज़रा इसको चार्जिंग पे लगा दूँ. ओके मैडम.
right, sorry, interval scale, right. Now the next one is ratio scale. So weight or length or distance, इसमें जो assigning the meaning not only to the distance between the measurement but also the ratio of distance, length, weight. अब आप क्या बोलते हो कि 25 kg ग्रुप्स के लोग कैसे होंगे, लेंथ 13 सेंटीमीटर वाले पर्सन्स कितने होंगे। तो जब आप इस टाइप की क्वेरीज लेते हैं या डेटाज लेते हैं तो इसको हम रेशियो स्केल बोलते हैं, द सोर्स ऑफ इन एरर इन मेजरमेंट्स। अब ये जो आप स्केलिंग करते हैं इनके सोर्सेस क्या हैं, ये आप इसको कहाँ से लेते हैं, तो वो रिस्पोंडेंट, सिचुएशन, इंटरव्यूअर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये अलग अलग होंगे। रिस्पोंडेंट ड्यू टू फियर, सोर्सेस ऑफ एरर इन मेजरमेंट, अलग अलग टाइप से इसको आप कलेक्ट करते हैं। नॉमिनल आप कहाँ से करेंगे, ऑर्डिनल आप कहाँ से करेंगे, स्केलिंग कहाँ से करेंगे, वो सब चीज़ें आप क्वेश्चन आवर से करेंगे या आप डायरेक्टली इसको मेजरमेंट करेंगे। तो इसीलिए डेटा एंड इट्स टाइप, जब आप इसको कलेक्ट करते हैं तो हम इसको डिफरेंट टाइप के डेटास में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रुप ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आइदर द हिस्टोरिकल और डिलीवर्ड बाय द कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट और सम अदर मेथड इज नोन एज द डेटा। तो डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज वैल्यूज, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशंस एक्सेट्रा। डेटा कैन बी नंबर है तो नॉमिनल, वर्ड है तो ऑर्डिनल, मेजरमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन है और जस्ट डिस्क्रिप्शंस। क्वालिटेटिव यदि नंबर फॉर्म में है तो उसको क्वांटिटेटिव बोलेंगे, इफ द कैटेगरीज फॉर्म में है सो यू कैन से दैट द क्वालिटी न्यूमेरिकल डेटा इज डिस्क्रीट और द कंटिन्यूअस, लाइक दैट। तो हम इसको डिफरेंट डेटास में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि किस टाइप के डेटा आपके लिए यूजफुल हैं और आप उस डेटा के अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं कि आपको कहाँ से कलेक्ट करना है, कहाँ से नहीं करना है, लाइक दैट। तो टाइप्स ऑफ डेटा में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है, ठीक है। दिस इज द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम कोई भी डेटा लेते हैं, दैट इज द प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अदर सोर्सेज हैं वहां से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सो यू कैन से इट इज द सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो इसीलिए हम जो कहते हैं ना कि डेटा, मैंने बताया कि डेटा आपने किया और उसको पब्लिश नहीं किया तो आपका डेटा जो है वो ऑथेंटिक नहीं होगा, और जब तक वो ऑथेंटिक नहीं होगा आपकी रिसर्च भी ऑथेंटिक नहीं कहलाएगी। तो आप यदि डेटा बेस्ड आपका रिसर्च है तो सबसे पहले आपका जो सोर्सेस है, सोर्सेस ऑफ योर डेटा, दैट इज मोर प्रिस्क्राइब्ड। इसी को मैंने थोड़ा सा और कर देते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी और द सेकेंडरी डेटा की, क्या प्राइमरी डेटा कौन सा होगा और द सेकेंडरी डेटा क्या होगा, ठीक है। ये मैं सारी अपनी जो पीपीटीज हैं वो दे दूंगी। ये एक्चुअली एक बुक क्लास के हिसाब से ही बनी है जिसमें हर जो क्वेश्चंस अराइजर्स होते हैं रिसर्च मैथोलॉजीज के उसके अकॉर्डिंगली बनी है, इसलिए इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बनाया हुआ है, ठीक है। सो इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कलेक्शन कहाँ से किया, जैसे मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी से। कोडिंग करना है कि नहीं करना है, जब तक कोडिंग नहीं होगी आप उसका प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। कोडिंग इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा। उसकी एडिटिंग का मीनिंग क्या हुआ, आपने जो डेटा लिया है उसमें से कुछ डेटा मिसिंग हो सकता है आप लेना भूल गए हैं, हो सकता है आपने लिखा था मिसिंग हो गया है, तो उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, एडिटिंग के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए एनालिसिस ऑफ डेटा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा। टैबुलेशंस, उसके बाद आपने डेटा तो बहुत सारा कर दिया, अब वो एक सिस्टमेटिक मैनर में है कि नहीं उसका आप टैबुलेशंस करेंगे, ठीक है ना। जब तक वो टैबुलेशंस नहीं करेंगे तब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और जैसे मैं आपके रिसर्च को नहीं जानती हूँ और मैं आपका प्रेजेंटेशन देख रही हूँ तो वो टैबुलेशंस कैसा है, आपका
प्रेजेंटेशन कैसा है कि जो सामने बैठा है उसको एक बार में एक क्लिक में उसकी आपको सारी बात समझ में आ जाए। आपका प्रेजेंटेशन, आपका टैबुलेशन, दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड द एनालिसिस ऑफ डेटा। कलेक्टिंग द डेटा, जैसे मैंने बताया कि आपने प्राइमरी डेटा लिया, सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब प्राइमरी डेटा तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास था, सेकेंडरी डेटा अपने एक ऑथेंटिक, अगेन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा तो आपने वहाँ से लिया। लेकिन फिर भी आपको कुछ और डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं जिससे कि आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं बाय द ऑब्जर्वेशन, थ्रू द पर्सनल इंटरव्यूज, थ्रू द क्वेश्चन आवर्स, थ्रू द टेलीफोन, लाइक दैट। जैसे हम आजकल देखते हैं कि हमें बार बार फ़ोन आते हैं कि आप हमारा हमसे लोन ले लीजिए। तो ये लोन ले लीजिए, वो फ़ोन कहाँ से करते हैं, वो क्या कहाँ से कलेक्शन करते हैं डेटा, वो लोग कहाँ से लिया उन्होंने कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डेटा उठाया कि कौन कितना लोन लेता है, उस ऑर्गेनाइजेशन से आपका नंबर निकाला और आपकी सारे दिन भर की डे टू डे लाइफ की आपकी ऑर्गेनाइजेशन देखी, आपकी दिनचर्या देखी, और उसके बाद वो देखेगा कि हाँ यू नीड द लोन, तो इसलिए वो आपको फ़ोन करेगा, ठीक है। तो वो टेलीफोन इंटरव्यूज हो गया, आपसे पूछेगा कि आपको ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, कितने दिनों में देंगे, ये सब जो, तो ये दैट इज़ द टेलीफोन इंटरव्यूज थ्रू द पर्सनल इंटरव्यूज। कई बार और किसी टाइप के रिसर्च के लिए हमें पर्सनल इंटरव्यूज की ज़रूरत होती है, जैसे हम पॉलिटिकल उसमें देखते हैं या चुनाव विश्लेषण हम जो देखते हैं, जनरली इसमें पर्सनल इंटरव्यूज का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन जो रिपोर्टर्स होता है वो पर्सन टू पर्सन जाता है, उनसे पर्सनली पूछता है आपने किसको वोट दिया। तो दिस टाइप ऑफ डेटा कलेक्टिंग इस प्रोसीजर इज कॉल्ड अ पर्सनल इंटरव्यूज, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस से क्या हुआ कि ऑलरेडी डेटा है, जो प्राइमरी डेटा था या जो सेकेंडरी डेटा था, उसी को आपने लिया और उसका एनालिसिस किया, उसी को आपने ऑब्जर्व किया। सो दैट टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये स्किप कर रही हूँ एस्पेक्ट्स। अब जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो डेटा कलेक्ट करने के बाद एक दूसरा एस्पेक्ट्स आता है वेरिएबल्स। हाउ यू कैन डिसाइड विच वेरिएबल्स आर यूजिंग इन योर, और यू कैन से दैट मोर इम्पॉर्टेंट इन योर रिसर्च। सो वेरिएबल भी क्लैरिफाई होना चाहिए कि एनी ऑब्जर्वेशन दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज, it can be in valuable form, it can be in numbering form, it can be in calculation form. That variables should be also very clarified. Attributes a specific value on a variable. हम किसी भी वेरिएबल को किसी नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेनफॉल, एक वेरिएबल एक्स एंड वाई लिया, एक्स को मैंने रेनफॉल दे दिया और वाई को मैंने रन ऑफ दे दिया, तो एट्रीब्यूट्स हो गया, मैंने एक पर्टिकुलर उसको स्पेसिफिक नेम दे दिया। सो दिस यू कैन से दैट इज द एट्रीब्यूट्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इट शुड बी से द इंडिपेंडेंट और द डिपेंडेंट, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल एक्सरसाइज, पार्टिसिपेशंस, एटीट्यूड, सोशल सपोर्ट, इंटरवेंशंस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कैसे हम एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। हेल्थ स्टेटस, ठीक है। हेल्थ स्टेटस यानी आपने डायबिटीज, सपोज एक डायबिटीज एक स्टेटस लिया हेल्थ के लिए, और उसमें डायबिटीज में उसका शुगर लेवल आप ले रहे हो, तो शुगर लेवल एक वेरिएबल है, ठीक है। अब वो वेरिएबल क्या हुआ, इन पर्टिकुलर इन अ वे दिस इज द इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, पर उसको आप इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरियस मतलब डिफरेंट टाइप से होगा। आपका शुगर लेवल दूसरा है, आपका शुगर लेवल दूसरा है, वो बॉडी स्ट्रक्चर पे है, तो वो क्या हुआ इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सरसाइज, जो सारे जो हम जैसे शुगर लेवल लिया तो मैंने बीपी भी चेक कर लिया और शुगर लेवल भी ले लिया और दोनों को मैं कंप्राइज कर रही हूँ, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए।
ठीक है ना। और उसके हिसाब से मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेरिएबल, बट इट इज डिपेंड ऑन द sugar level and the BP level, so that medicine prescription is the dependent variable. बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं डेटा कोडिंग। तो पहले तो मैं इसलिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ यदि एक हम क्लास कर रहे होते तो मैं आपको इसको काफ़ी ब्रीफ में जाकर एक्सप्लेन करती, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा आपको एक रिसर्च मेथोलॉजी क्या होना चाहिए आपकी रिसर्च की, आपने पहले फॉर्मुलेटिंग कर दिया, डेटा कलेक्शन कर लिया, डेटा कलेक्शन के बाद उसको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया, और उस रिप्रेजेंटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कौन सा इंडिपेंडेंट, क्योंकि जब तक ये वेरिएबल डिसाइड नहीं होंगे आप उनके बीच की रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इट विल बी लीनियर, नॉन लीनियर, लाइक दैट, क्योंकि जो नेचुरल फेनोमेना होता है ऑलवेज इन अ नॉन लीनियर, और लीनियर फेनोमेना है तो अप्लाइड में जनरली हम नॉन लीनियर फेनोमेनन्स यूज करते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वेरिएबल इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है। अब उसके बाद कोडिंग होती है कि आप जैसे आपने क्वांटिटी वाइज किया तो आप तो नंबर से कर रहे हो, तो आप उसमें रिलेशनशिप निकाल सकते हो बाय द कोरिलेशन मेथड और एनी अदर रिग्रेशन मेथड और वॉट एवर यू कैन यूज इट। लेकिन यदि आप क्वालिटेटिव लेते हैं तो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दैट वेरिएबल्स, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, कोडिंग देनी पड़ेगी। कोडिंग कैसे होगी कि आपने मैक्सिमम को 1 दे दिया, उसके बाद एवरेज को 2 दे दिया, उसके बाद मिनिमम को 3 दे दिया, तो दिस इज लाइक अ कोडिंग। जरूरी नहीं है कि यू कैन से दैट इन अ नंबर वे, यू कैन ऑर्डिनल, नॉमिनल, जो मैंने स्केलिंग आपको बताई थी वो स्केलिंग ही एक्चुअली कोडिंग है। लेकिन वो किस टाइप में, कहाँ पर कौन सा मेजरमेंट यूज करना है वो डिसाइड होना चाहिए। और उस कोडिंग के बाद आपको रिलेशनशिप डिफाइन करिए आपने, उस रिलेशनशिप में वो कोरिलेटिव है कि वो कैजुअल रिलेशनशिप है, ये आपने डिफाइन किया। और उसके बाद उस रिलेशनशिप में आपने डिफाइन किया कि ये रिलेशनशिप है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और कि नॉन लीनियर है या कर्व लीनियर रिलेशनशिप है। तो इस टाइप से आपने उसको डिफाइन करते गए। अब जब आप ये डिफाइन करते हैं कि लीनियर है, नॉन लीनियर है, या ये नॉर्मल है, वैक्यूबलरीज है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाने के लिए आपको हाइपोथेसिस देनी पड़ती है। फिर हाइपोथेसिस आप देते हैं तो आप पढ़ते हैं कि नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव है, तो हाइपोथेसिस की आप क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। वो टेस्टिंग लगाने के बाद उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, और वैलिडिटी चेक करने के बाद आप उसका रिजल्ट देंगे, और रिजल्ट के बाद उसका इंटरप्रिटेशन देंगे, उसको जस्टिफाइड करेंगे। देन यू कैन राइट इन योर रिसर्च इन दैट मैनर। जैसा Ma'am, you are not audible, ma'am. Ma'am, I think your battery lost. Kapil sir, please interact with ma'am by phone or anything. Okay. Let's wait for 2 minutes. अच्छा मैडम, मेरा एक्चुअली अभी ना रचना मैम क्लास है। हेलो। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. You are audible, ma'am. हेलो। Yes, madam, you are audible. एक क्लास है, ओके। हाँ सर, एक्चुअली मेरा क्लास है और एक मीटिंग भी है, सो इसलिए मैं थोड़ा यहीं पर इसको स्टॉप करना चाह रही थी। 2 बार फोन आ चुका है, अर्जेंट मीटिंग है एक MBA के लिए।
the session, ma'am? नहीं, I can give you for the question hour session time. Yeah, So we are if fine. you have any type of queries or like that, please. So, ma'am, actually, one question is repeated. How the research topic can be identified? Um, please, I'm not audible to How, your how the research topic can be identified? research topic. Yeah, ma'am. How you can identify? Already told you. First, you can survey the literature. जब तक आप लिटरेचर सर्वे नहीं करेंगे आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे आपको क्या करना है. सबसे पहले तो आपको किस फील्ड में जाना है फील्ड आप डिसाइड करेंगे क्योंकि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आप सिविल से हैं आप इलेक्ट्रिकल से हैं आप साइंस से हैं या बायोलॉजी से हैं या फिजिक्स से हैं ये आपका ऑलरेडी डिसाइड है. अब उस फील्ड में आपको जो काम करना है उसको लिटरेचर सर्वे करिए. लिटरेचर सर्वे के लिए आपको जर्नल्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं. आप रिसर्च पेपर पढ़िए जो कि आप नेट से निकाल सकते हैं. उस रिसर्च को पेपर को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि क्या ये आप काम कर पाएंगे देन यू कैन डिसाइड. तो सबसे पहले लिटरेचर सर्वे से टॉपिक डिसाइड करना सबसे आसान भी होता है और एक ऑथेंटिक मैनर भी होता है कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है और उससे मुझे अब नया क्या काम निकालना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं. Ma'am, for joining us today. Now, I would like to invite Mr. Narendra Jude sir for vote of thanks. Thank you, ma'am. थैंक यू. Uh, सॉरी सर थोड़ा प्रेजेंटेशन और था लेकिन बहुत जी अर्जेंट मैसेज पड़ा हुआ है सो जी आई वांट टू लीव इट. no issues, ma'am. Thank you for giving us time. It is an honor to have been asked for vote of thanks. Myself, Narendra Dude from Ravindranath Tagore University. On behalf of Ravindranath Tagore University, I would like to thank our both both of the guests, Dr. Rashmi Nigam madam and Dr. A.K. Shivastav sir, for joining us and for sharing such good knowledge with us. And I would also like to thank our Honorable Chancellor Sir, Shri Santosh Chobe Sir, Dean Sir, Dr. Sanjeev Gupta Sir for giving permission to organize such webinar. I want to thank all the faculties who worked hard to make this event successful. Also thank to all the students and participants for patient listening. I would end up my speech here. Thank you. Thank you for joining all the participants. Okay, thank you, madam. Thank you very much for today's session. Thank you, Sorry Srivastava for sir. No, it's okay, madam. It's okay. Ma'am, it's Some huge, another day we will connect. yeah sure. Thank you, madam. Thank you. Very nice. Thank you, sir. Thank you, Shivastav sir. थैंक यू सो मच सर AK श्रीवास्तव सर मैंने कल जी आपको थैंक यू. किया था बहुत मैंने अच्छा था बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था सर मेरा जी. क्योंकि मैं अभी नई हूँ इस फील्ड में यू आर नहीं बहुत एक्सपीरियंस अच्छा. अब मैंने देखा कि आपने सब्जेक्टिव और साइंटिफिक बहुत अच्छा बताया. मैंने कंटेंट बहुत अच्छा लगा जो साइंटिफिक है और मैथमेटिकल अच्छा लगा बहुत अच्छा. एक्चुअली मैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हूँ सो इसलिए जी. मैं उसी फील्ड पे आई. नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच सर. अर्जेंट मीटिंग है जी जी. so Future sorry. No issues, ma'am. We will continue this session. नरेंद्र सर आप मुझे AK श्रीवास्तव सर का नंबर प्लीज SMS कर दीजिए. बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल Thank you so much. immediately. Okay, Thank you. thank you everyone. Thank you. Have a great day. Thank you. Okay, thank you. सुनील सर. सुनील सर. कपिल सर. कपिल सर.
एडवांस का कॉन्सेप्ट दो यूनिट्स अपनी डिफरेंट दो